Hello students, this is DNT and welcome you to my channel DNT English Classes. Well, today's video is very special from the point of view of improving your communication skill. Well, what is this video all about? Well, this video is very special as I told you that in this video we are going to learn good habits. Good habits for what? For communications. You know, this is a cross-culture activities, especially when you are speaking any language. See, every language has manners and good habits to follow. When we are talking about English language definitely, you know, has many good things. I mean, the etiquette and manners to follow. So we are going to learn some phrases, some expressions which gives a better impact on others, because this is meant to show our manner, etiquette. Let us start without wasting time. Well, this video starts with the phrase listen please. Well, when do we use listen please and what does it mean? Listen please is commonly used when we want to say somebody to pay attention towards me. Suppose we want to start a conversation, we want to start a dialogue with somebody. So we'll definitely make sure that the person is paying attention towards me. So it's better to say, listen me guys, listen me dear, listen me students, whomsoever you would like to communicate. आप जिससे भी बात करना चाहते हैं, you make sure that the person is paying attention to you. So in order to gain attention, in order to divert somebody's attention towards you, you say listen please. Well, coming to the next expression, just coming. When do we say just coming? Suppose somebody calls me and I want to go there, but it takes a little time. At that time, I can say just coming. अभी आया, आ रहा हूं. ये कब होता है? जब हमें कोई बुलाता है, हम जाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं आ रहे हैं, अभी आया. Normally we suppose not to say I am busy, that it will take time to come, because we want to go there. Doesn't matter, it takes time, थोड़ा सा वक्त लगता है, but it's better to say just coming. How does it pronounce? Just, T is silent when these two words coming together. We say just, not just coming. Just coming. Just coming mom, just coming father, just coming sir, just coming brother. Whomsoever has called you, you're responding to him that you are reaching there, you are approaching him, you are going there without any delay. Since it takes a little time, so you say just coming. We don't say only coming, just coming. Abhi aa raha hu. What is the third expression? Get down please. When do you say get down please? When somebody is upstairs or somewhere up, and if we are asking him to go down, to alight or to come down, in that case we can say get down please. Suppose if you are with a group somewhere upstairs and after finishing your work, every one of you supposed to come to downstairs. In that case, one of them can say let's get down or get down please. Suppose you are traveling in a bus, your bus stop has come, you want to alight, so you can say that whosoever is standing at the gate, suppose कि somebody is standing at the gate, वो गेट पे खड़ा है, आप उतरना चाहते हैं, आप उसे कहते हैं कि will you please get down? I want to get down at this stop. Move aside please. I want to get down. तो वहां पर आप get down का यूज करते हैं ऊपर से नीचे उतरने के लिए, in case of alighting, in case of coming from upstairs to downstairs. Get down, how does it pronounce? The pronunciation is get down please, get down please. Now where can we use go up please? Go up please is used
Suppose when two persons are standing downstairs and one person wants to send other upstairs. You know, ग्राउंड फ्लोर को डाउनस्टेयर कहते हैं एंड ग्राउंड फ्लोर से ऊपर का कोई भी फ्लोर को अपस्टेयर कहा जाता है. तो सपोज यू आर सेंडिंग somebody from downstairs to upstairs for any reason. You can say go up please, कृपया ऊपर जाइए. And just opposite of that you can say go down please. It is just opposite as when two persons are standing upstairs and one of them wants to send other downstairs. अब दो व्यक्ति ऊपर में हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति दूसरे को नीचे आई मीन टू से डाउनस्टेयर ग्राउंड फ्लोर पे भेजना चाहता है या फिर किसी नीचे के फ्लोर पे भेजना चाहता है, तो ही कैन से देयर प्लीज गो डाउन प्लीज. Now, what is come up please? Number 6, come up please. Suppose one person is standing downstairs and one person is standing upstairs. अगर अपस्टेयर के पर्सन ऊपर के फ्लोर में है और वो नीचे वाले को ऊपर आने के लिए कहता है. Suppose he wants to call the person who is standing downstairs. So, he uses the English as come up please. कृपया ऊपर आ जाइए. Suppose यू वेंट फॉर ए फ्रेंड, आप किसी अपने फ्रेंड को बुलाने जा रहे हैं और वो फ्रेंड आपके ऊपर के फ्लोर में सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे रहता है. आप अपने फ्रेंड को कह रहे हैं कि हेलो फ्रेंड प्लीज कम डाउन, नीचे आओ, लेकिन आपका फ्रेंड कह रहा है कि सॉरी आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम गेटिंग रेडी, आई एम हैविंग माई मील. सो यू डू व्हाट यू डू इज यू कम अप प्लीज, तुम ऊपर आ जाओ. तो आप कम अप प्लीज कहते हैं ऊपर बुलाने के लिए. एंड वेयर डू यू से कम डाउन प्लीज? When you are calling somebody from downstairs, when somebody is upstairs and you are downstairs, when downstairs person wants to call upstairs person, he says come down please. What is next word? Next expression is get off please. Get off please आप कब कहते हैं? देखिए थोड़ा ये सिमिलर है. Get down, come down, गो अप प्लीज, गो डाउन प्लीज, कम अप प्लीज. ये गेट ऑफ प्लीज का क्या मीनिंग होता है? जब आप किसी को अंदर से बाहर आने के लिए कहना चाहते हैं तो आप गेट ऑफ कहते हैं. सपोज समबडी इज इन द कार, कोई व्यक्ति कार में है और आप उसको कहते रहे बाहर आओ या बाहर आ जाइए या फिर उतरिए, तो वहां पर गेट डाउन कहना ठीक नहीं होगा. बेटर यूज से गेट ऑफ प्लीज, अंदर से बाहर. अब कोई कमरे में भी है तो उसे अगर हम बाहर आने के लिए कहना चाहते हैं तो आई कैन से प्लीज गेट ऑफ फ्रॉम द रूम, प्लीज गेट ऑफ फ्रॉम द कार. दैट मीन्स आप कार से बाहर आ जाइए, आप अंदर से बाहर आ जाइए. यहां पर गेट डाउन कहना उतना ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं होगा क्योंकि यहां स्टेयर केस का यूज नहीं होता है. जब हम अपने कमरे से बाहर आते हैं तो वहां कोई सीढ़ी नहीं होता है. व्हेन वी आर कमिंग आउट फ्रॉम ए कार, जब आप कार से उतरते हैं तो वहां भी स्टेयर नहीं होता है, तो वहां गेट ऑफ कहना ठीक होगा. लेकिन जब आप किसी को पेड़ से उतरने के लिए कहते हैं, छत से उतरने के लिए कहते हैं, आप किसी को अपस्टेयर से नीचे आने के लिए कहना चाहते हैं, तो देयर यू से प्लीज गेट डाउन और गेट डाउन प्लीज. आप कहीं बस ट्रेन कहीं से आप नीचे उतरने की बात करना चाहते हैं कि मैं उतरना चाहता हूं. आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी स्टेशन आ गई, तो आप कहना चाहते हैं कि मुझे उतरना है, भाई साहब आप उतरोगे? सो आई वांट टू गेट डाउन, विल यू प्लीज गेट डाउन, प्लीज बी ए साइड, आई वांट टू गेट डाउन, मुझे उतरना है. सो दिस इज गेट ऑफ. आप कहते हैं बाहर आइए अंदर से या फिर उतरिए. वेयर कैन वी यूज लिटिल मूव प्लीज? लिटिल मूव प्लीज, सपोज यू वॉन्ट अ लिटिल स्पेस फ्रॉम समबडी, आपको किसी से थोड़ी सी जगह चाहिए. In that case, you say little move please. Suppose you've gone somewhere and you are waiting for somebody. You saw that in a waiting hall, people are seated somewhere. There is a sofa and two persons are seated there comfortably. You think that you can adjust there if the person moves a little bit. आप देख रहे हैं कि अगर पर्सन थोड़ा मूव करे, थोड़ी सी आपको अगर जगह दे वहां पर, तो आप भी आराम से वहां बैठ सकते हैं. तो इन दैट केस you can say little move please. थोड़ा सा खिसकिएगा, थोड़ा सा मूव कीजिएगा. Suppose you want to ride a bus and people are standing at the gate. You are unable to catch the bus. You are unable to ride the bus.
In that case, you say to that person whosoever are standing, little move please, थोड़ा सा खिसकिएगा, so that I can also ride the bus. So ये बहुत ही सुंदर एटिकेट वर्ड्स है. Little move please, थोड़ा सा खिसकिएगा, just in case of demanding a little space from somebody. आगे बढ़ते हैं. Moving further, move aside please. Where can you use move aside please? आप किसी को कब कहते हैं कि कृपया बगल हो जाइएगा? When you want to say somebody as to move from one place to the other. आप किसी को कहना चाहते हैं कि वो थोड़ा रास्ते से मूव हो जाए, to go one side, either left or right, so that you can pass freely or easily. Suppose you want to cross from some way, you want to move from some way, and someone has occupied the way, they are standing on the way only. In case you want to say to move somebody to one side, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि वो एक बगल हो जाए या फिर रास्ते से हट जाए, in that case you say move aside please, कृपया बगल हो जाइएगा, so that you can pass, vehicle can pass, or for anything or for anyone to make your way completely free, you say move aside please. Don't say only side please. This is not a formal language. आप अगर किसी को कहते हैं साइड प्लीज तो ये उतना ज्यादा फॉर्मल नहीं होता है जितना ज्यादा आप कहते हैं मूव असाइड प्लीज. सो वी ऑलवेज प्रेफर टू यूज कंप्लीट सेंटेंस टू मेक आवर सेंस अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज come this way please. Come this way please is used, a very common expression used in restaurant mostly, या फिर आप इसे कहीं भी यूज करना चाहते हैं. when you want to say somebody to follow you, when you want to say somebody to come to your way, इधर से आइएगा. जब आप किसी को गाइड कर रहे हैं, the person doesn't know as where to go and how to go, तो आप उसे कहते हैं कि इधर से आइएगा, इधर आइएगा. इट्स बेटर यू कैन से कम दिस वे rather than telling him follow me. follow me थोड़ा सा कमांडिंग लगता है, बट when you say come this way please, इधर से आप यूज करते हैं. सपोज आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, हैव यू गॉट अ टेबल फॉर 4? क्या आपके पास 4 के बैठने के लिए टेबल है? बंदा आपको आपके टेबल तक गाइड करके ले जाता है और आप वो इंग्लिश में कह रहा है कम दिस वे प्लीज, इधर से आइएगा. दैट मीन्स यू आर टू फॉलो हिम. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्टेप दिस वे प्लीज. ये भी बिल्कुल सिमिलर है कम दिस वे प्लीज का स्टेप दिस वे प्लीज. ये स्टेप दिस वे प्लीज और कम दिस वे प्लीज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्सप्रेशंस. स्टेप दिस वे प्लीज मतलब हुआ कि इधर से आइएगा. इधर से आइएगा मतलब हुआ कि स्टेप राइट, स्टेप लेफ्ट. व्हेन यू थिंक दैट देयर इज अ लिटिल डिस्टर्बेंस ऑन द वे एंड यू वांट अ पर्सन टू टेक टर्न आइदर लेफ्ट और राइट, थोड़ा सा घूम के आने का जब आप बात करना चाहते हैं कि इधर से आइएगा, उधर से आइएगा, यू वांट टू रिमाइंड द पर्सन एज हाउ टू फॉलो यू, व्हिच इज द बेटर वे टू फॉलो यू. इन दैट केस यू से स्टेप दिस वे प्लीज. आप अगर कहना चाहते हैं किसी को कि दाहिने से मुड़ के आना, तो आप कहना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ टेक ए राइट टर्न, टेक ए लेफ्ट टर्न, यू से स्टेप अ राइट प्लीज, स्टेप अ लेफ्ट प्लीज, एंड देन कम टू मी एंड देन टू फॉलो मी. इन दैट केस यू से स्टेप दिस वे प्लीज, इधर से आइएगा, या फिर come this way please when there is no disturbance, the way is clear. In that case you just say that as to follow you. Next is it will do and that will do. It will do or that will do, these are two similar expressions. There is a big difference. It will do is used for the nearest thing, नजदीक के चीजों के लिए यूज करेंगे, and that will do का यूज हम लोग दूर के चीजों के लिए. as we know that this is used for nearer thing and that is used for the farther thing, the thing which is not near to you, which you cannot approach easily. Well, where can you say it will do?
Suppose if you go somewhere and the person is offering as what would you like to have tea or coffee? क्या लेंगे आप, चाय और कॉफी क्या लेंगे? तो suppose you have chosen to take tea, you prefer to take tea, आप चाय पीना पसंद करते हैं तो आप कहते हैं टी विल डू. सपोज कि आप किसी शॉप में जाते हैं कुछ खरीदारी करने के लिए, आप जो भी आइटम डिमांड करते हैं आपको बहुत सारा वेराइटीज दे दिया जाता है एंड आपको फिर पूछा जाता है कि ओके डियर विच वन यू प्रेफर, विच वन वुड यू टेक, आप कौन सा लेंगे? तो आपको जो लेना होता है आप उसे टच करके कहते हैं एक्सक्यूज मी इट विल डू, ये चलेगा, या फिर मैं ये लूंगा. तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि when somebody offers me something or when I want something, जब मुझे कुछ चाहिए होता है और उसके लिए मुझे चॉइस दिया गया, अल्टरनेटिव चॉइस कि मुझे कौन सा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए या फिर क्या चाहिए, तो whatsoever we want or we choose to take, by touching that, by indicating that, I can say it will do. One more example. Suppose if somebody asks me, well DNT, how would you like to travel, by train or bus? I think I prefer bus as to travel. I can say, well dear, I think bus will do. बस चलेगा. That means मैं बस से ट्रेवल करना पसंद करूंगा. तो ये नजदीक के चीजों के लिए, जो चीज हमें अप्रोचेबल लगता है, आसपास लगता है, करीब लगता है, उसके लिए इट विल डू. और वही सेम चीज अगर मान लो कोई दूर में है, कबोर्ड में है, क्लोसेट में रखा हुआ है, आई कैन नॉट अप्रोच, और मुझे पूछा जा रहा है कि ओके लेट मी नो, मुझे बताइए कि आपको कौन सा चाहिए, यू वांट दिस और यू वांट दैट, कौन सा? तो हम कहते हैं दैट विल डू, दैट बिहाइंड रेड वन, जस्ट बिलो टू दैट, और जस्ट क्लोजर टू दैट. तो इन व्हाटसोएवर इंडिकेटिंग दैट हम बता सकते हैं कि मुझे वो चाहिए. वो का मतलब यहां ये हो गया कि वो चीज आपसे दूर है. वेल इट विल डू एंड दैट विल डू का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज मुझे चाहिए और उसके लिए ऑप्शंस दिया गया है और मुझे सिलेक्ट करने हैं ऑप्शंस को कि मुझे क्या चाहिए. आफ्टर चूजिंग बाय टेकिंग नेम आई कैन से व्हाटसोएवर आई वांट विल डू, और फिर हम इट विल डू या दैट विल डू का यूज करते हैं कि ये चाहिए या वो चाहिए या फिर क्या चाहिए. कमिंग टू 15 नंबर, sit down please. This is a most commonly expression used in English, sit down please. When can you say sit down please? When you want to offer seat to somebody, you say sit down please. Mostly it is used in case of friends, your junior. We normally don't say any senior or elder or older sit down. Sit down is a little bit commanding word. Even if we use please, please is showing courtesy. ये तो एक शिष्टाचार के लिए एक आदर सूचक शब्द है, और आदर तो छोटे बड़े सबको किया जाता है. Doesn't matter whether you are speaking to junior or senior, elder or younger. Please can be used with everyone. This is the most polite way of speaking. This is the most courtesy as to talk to anyone. तो ये एक शिष्टाचार के लिए आदर सूचक शब्द है, सबके साथ यूज होगा. लेकिन जब हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि बैठिए, sit down please, तो वो देखेंगे कि वो जूनियर है या फिर हमारा फ्रेंड हो सकता है. We don't say to any senior person. But take your seat please. The next etiquette is take your seat please. When can I say take your seat please? When any senior person comes to me, if I want to offer him seat, I can say take your seat please. Suppose some elder, older, some teacher, guest, whosoever has come to you, it is our duty, it is our responsibility, manners to provide them a seat, and therefore we say take your seat please. कृपया बैठिएगा. Or I can say please be seated. These two, take your seat please and please be seated, both expression can be used for elder and older. The person is respected, the person is senior to you. You don't say sit down please.
rather you say take your seat please or please be seated. तो ये मैनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. विदाउट दीज लाइन्स, विदाउट दीज एक्सप्रेशन, योर manners will not be okay. So we make sure that whenever we begin our interaction with anyone, whenever we talk to anyone, these things has to be followed very sincerely and very carefully. Then only you are a well-mannered person. Our language shows the manner. Our language shows etiquette, good habits, through which we can give the better impact on somebody's. Yeah. So please be seated and take your seat please, and sit down please is mainly used as in case to provide seat to somebody. Moving next, number 18. When can I say anything else please? Anything, anything else please. When can I use anything else please? Suppose you want to offer somebody something in addition to what is given to him. What has been given? Apart from that, आपने किसी को कुछ सर्व किया है, आपने किसी को कुछ दिया है, और फिर आप उसे और कुछ लेने की बात पूछना चाहते हैं. आप कहते हैं एनीथिंग एल्स प्लीज, और कुछ लीजिएगा. सपोज यू हैव बीन इन्वाइटेड समवेयर, आपको कहीं पर इन्वाइट किया गया है, एंड यू हैव बीन सर्व्ड वेरी मच डिलीशियस फूड्स. आप उसे इंजॉय कर रहे हैं, और एक बंदा आकर के आपको पूछता है एनीथिंग एल्स प्लीज, और कुछ लेंगे. दैट मीन्स व्हाट? दैट whatever has been given to you, आपको जो कुछ दिया गया है उसके अलावा आपको पूछा जा रहा है कि आप कुछ और लेंगे कि नहीं. सपोज आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, मैं वहां गया और मुझे एक गिलास पानी और चाय दिया गया. आई हैव बीन ऑफर्ड, आई हैव बीन गिवन a glass of water and a cup of tea, and apart from it my friend is asking, well DNT, anything else please? I said, why not? Some snacks please, some biscuits please. अरे कुछ बिस्किट्स भी लाओ. तो that is what my additional demand when I was asked anything else please. अगर मैं दुकान में जाता हूं, I have got a list of items to buy. मुझे एक लिस्ट है मेरे पास कि मुझे क्या क्या खरीदना है. हमने दुकान वालों को कहा, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन प्लीज नोट डाउन माय ऑर्डर, मेरा ऑर्डर नोट कर लीजिए. और मैंने एक एक अपने ऑर्डर को नोट करवा दिया. व्हेन आई फिनिश्ड, हमने कहा हो गया. दुकान वाले पूछता है एक्सक्यूज मी एनीथिंग एल्स प्लीज, और कुछ लीजिएगा. इन केस इफ एनीथिंग रिमेन्स, आई कैन अगेन इंक्रीज, अगेन पुट टू माई ऑर्डर. अगर और कुछ रह गया तो मैं अपने ऑर्डर में ऐड कर सकता हूं. तो ये एनीथिंग एल्स पूछना भी एक बहुत सुंदर मैनर है, एटिकेट है. अगर हमने किसी को कुछ दिया तो इसका मतलब कि नहीं वही सब कुछ है, उसके अलावा भी कुछ ऑफर किया जा सकता है. इन केस टू ऑफर इन एडिशन, यू कैन से एनीथिंग एल्स प्लीज. वेल, अगर हमसे कोई पूछता है एनीथिंग एल्स प्लीज, और कुछ लीजिएगा, तो व्हाट आई डू, द नेक्स्ट सेंटेंस 19 नंबर इज कमिंग. जब हमसे कोई पूछता है एनीथिंग एल्स प्लीज, और कुछ लोगे, तो व्हाट आई डू इज आई चेक माई रिक्वायरमेंट. मैं अपनी जरूरत को चेक करता हूं कि जो चीज मुझे ऑफर किया गया है, जो मुझे लेने के लिए पूछा जा रहा है, वो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर मुझे और कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए. इन केस इफ आई हैव नो डिमांड, इफ आई डोंट वांट एनीथिंग, it is the formal way of saying no thanks. वहां पर आप कहिए no shows negative requirement, और thanks इसलिए because you have been offered, कि आपको ऑफर किया गया है इसलिए आप thanks कहते हैं. तो नहीं भी चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो, आप किसी भी चीज के अगेंस्ट में जो ऑफर किया गया है अगर नहीं चाहिए तो आप कहिए no thanks, no problem. Suppose if somebody asks you as anything else please, और कुछ लोगे, अगर आपको चाहिए तो आपको जो चाहिए आप वो नाम लेकर बोलेंगे श्योर, यस, सम बिस्किट्स प्लीज, सम मिक्सचर प्लीज. नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको थोड़ा और पानी चाहिए, तो आप कहते हैं यस, सम वाटर प्लीज.
आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, आप कहते हैं श्योर सम कोल्ड ड्रिंक्स प्लीज। तो यहां पर आप यस भी कह सकते हैं और श्योर भी कह सकते हैं। श्योर इज वन वर्ड, श्योर। जब आपको कोई कुछ ऑफर करना चाहता है, ऑफर हो रहा है और आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप कहते हैं श्योर, व्हाई नॉट। वेल, आगे क्या चाहिए? यू आर giving him the idea as what you want. Next, I'm sorry. Where can you use I'm sorry? I'm sorry is used against little mistakes. I'm sorry is normally used as when you have committed a little mistake and you want to confess that mistake. देखिए, गलती वही है जो हम स्वीकार करना चाहते हैं। In most of the cases, person is not willing to confess or accept their guilty. This is wrong attitude. Accepting your bad commitment, accepting what you have done wrong is good habit. It is very common phrases used in English language. I'm sorry. देखिए, बहुत लोग सॉरी कहते हैं। सॉरी कहना उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना ज्यादा आप कहते हैं आई एम सॉरी। इट शोज मोर केयरिंग। सो नॉर्मली आई एम सॉरी इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू कन्फेस योर मिस्टेक। See, here person will not remind you as to say sorry. This is you who feel that because of you there is some problem. You can say, I'm sorry to hurt you. I'm sorry for this mistake. I'm sorry to talk to you. I'm sorry to disturb you. I'm sorry to come here. I'm sorry to do that. I'm sorry to interrupt. For छोटी गलती। देखिए, कहावत है इंग्लिश में, टू अर्र इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। अब गलती नॉर्मली होता क्यों है? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता के कारण गलती होता है। हमें जानकारी नहीं होता, हमें मालूम नहीं होता है, हमें समझ में वो चीज नहीं होता है और हमसे गलती हो जाता है। एवरीवन डज इट। हर किसी से गलती होता है। इट्स नॉट अ बिग डील। बट the important idea is to accept and confess your mistake. तो हम अपनी गलती को अगर स्वीकारना चाहते हैं, गलती छोटा है, स्मॉल मिस्टेक है, ट्रिपल मिस्टेक है, नो प्रॉब्लम, माइनर है, बट स्टिल आई एक्सेप्ट दैट एंड आई से आई एम सॉरी। आप इसके बदले में पार्डन मी भी कह सकते हैं। पार्डन मी, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। Moving next, I'm extremely sorry. Extremely का मतलब होता है very much, बहुत ज्यादा। मुझे बेहद अफसोस है, मुझे बहुत खेद है। So normally sorry when you feel that when you are too much grieved, when you are feeling too much sorry about anything, you are feeling some great regret or disappointment किसी चीज को लेकर, आप कहते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। आप किसी बैड न्यूज को सुने, किसी घटना को सुने, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं उस चीज को लेकर, आप कह सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस एज व्हाट हैपेंड। तो आप आई एम एक्सट्रीमली सॉरी तब भी कह सकते हैं, या फिर जब आप कोई बड़ी गलती करें। देखिए, छोटा गलती, स्मॉल मिस्टेक और बिग मिस्टेक, ये इसकी मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है? हाउ कैन यू मेजर योर मिस्टेक? इट इज मेजर्ड बाय इट्स इफेक्ट। अब इसका प्रभाव कितना बड़ा है? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आपसे, आपकी गलती से प्रभावित हो गया, या आपको लग रहा है कि ये कोई छोटी गलती नहीं है, ये बड़ा सा गलती हो गया, तो आप कहते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई डिड नॉट इन्फॉर्म यू, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई बिहेवियर दैट आई डिड नॉट इन्वाइट यू,
I did not inform you, I did not tell you that. आपसे कोई गलती हो जाए बड़ी, कोई बड़ा भूल जिसे आप ब्लंडर कहते हैं, जिसे आप बिग मिस्टेक कहते हैं, वहां पर आप यूज कीजिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए इसके बदले में आई एम सो सॉरी भी कह सकते हैं, बट आई एम सो सॉरी कहने से ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट आई एम वेरी वेरी सॉरी कहना ये गलत है, ये ग्रामेटिकली एप्रोप्रिएट नहीं है। आप गलती कीजिए, डजंट मैटर, छोटी हो या बड़ी गलती हो, बट मेक श्योर दैट यू मस्ट apologize your mistake. You must accept and confess your mistake by saying that I'm sorry and I'm extremely sorry. तो आप छोटी गलती और बड़ी गलती को स्वीकार करना चाहते हैं, आप उसके बदले में इस फ्रेज को यूज कीजिए। देखिए यहां पर कोई आपको पनिशमेंट देने के लिए नहीं तैयार रहेगा, आपको ये खुद फील करना होगा कि आपने गलती किया और आप स्वीकार कर रहे हैं इसे। इससे पता चलता है कि आप लोगों को केयर करते हैं, यू हैव अ केयरिंग एटीट्यूड। दिस इंप्रूव्स योर पर्सनैलिटी, दिस शोज योर गुड एटीट्यूड एंड एट द सेम टाइम इट इज गुड मैनर ऑफ इंटरैक्टिंग पीपल with anything. So I'm sorry and I'm extremely sorry. Now the next word is pardon. When can you say pardon? See, this is very important expression, using pardon. When somebody tells you, in most of the cases we most of the time don't hear it properly. हमसे कोई कुछ कहा और हमने उसे को ठीक से सुना नहीं। I want that person should repeat it once again. मैं चाहता हूं कि व्यक्ति उसको फिर से एक बार रिपीट करे, तो मैं उसे इंग्लिश में कहता हूं पार्डन। हिंदी में जैसे हमने कहता ना, क्या बोले, क्या, जोर से बोलिएगा, सुना नहीं, माफ कीजिएगा, इतना सारा कहने की कोई जरूरत नहीं है। When you want to listen it repeatedly, जब आप इसको दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप सीधा पर्सन को कहिए पार्डन, क्या बोले, एक बार फिर बोलिएगा। सो इन केस ऑफ यूजिंग दिस पार्डन वी मेक श्योर दैट वी आर यूजिंग इट इन द एप्रोप्रिएट कंडीशन। और आई बेग योर पार्डन, देखिए पार्डन और पार्डन मी थोड़ा सा डिफरेंस है। आप एक्सक्यूज में भी बोल सकते हैं, कुड यू रिपीट प्लीज भी बोल सकते हैं, और इन सबसे बेहतर जो वर्ड है वो है पार्डन। और पार्डन मी का मतलब हुआ माफ कीजिएगा, और माफ कीजिएगा तो हम अपनी गलतियों के लिए बोल सकते हैं। और कोई कुछ बोला और मैंने सुना नहीं, ये बहुत बड़ी गलती नहीं है। हो सकता है कि आप अटेंटिव नहीं थे, योर माइंड वॉज नॉट देयर विद द पर्सन, योर माइंड वॉज समवेयर। इन दैट केस you want to just hear it or listen it again, you say pardon. और अगर आप किसी चीज के लिए माफी मांगना चाहते हैं तो आप वहां मी लगा दीजिए, pardon me, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज I beg your pardon. देखिए I beg your pardon का यूज, अब हम एक तो गलती करें और गलती के लिए अगर मान लो कोई पनिशमेंट देना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं कि स्कूल में, कॉलेज में, आपके क्लासेस में आपको वर्क दिया गया, असाइनमेंट दिया गया, होमवर्क। नेक्स्ट डे व्हेन यू रीच द स्कूल एंड कॉलेजेस, आपसे टीचर पूछ रहे हैं कि वेल हैव यू डन योर होमवर्क, प्लीज शो, दिखाओ। आप कहते हैं सॉरी सर, मैंने होमवर्क नहीं किया, मे बी ड्यू टू सम रीजंस। अब आप देख रहे हैं कि टीचर ना मुझे इसके लिए पनिशमेंट देना चाहता है, क्लास में खड़ा करेंगे, क्लास में इंसल्ट करेंगे, क्लास से बाहर कर देंगे। तो आप कहते हैं फॉरगिव मी प्लीज सर, माफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड जो 24 में है, फॉरगिव मी प्लीज। और अगर कोई छोटी गलती हो तो आप कहते हैं आई बेग योर पार्डन, माफ कीजिएगा सर।
I was very busy. Some guest had come to my house and that is why sir I could not do my homework. सर मैंने इसीलिए होमवर्क नहीं किया. तो I beg your pardon का यूज भी अपनी गलती के माफी से, मतलब अपनी गलती के लिए माफी मांगने के लिए है. आपने जो गलती किया उससे आप माफी मांगना चाहते हैं. आपने किसी को हर्ट कर दिया, आपने किसी को कष्ट पहुंचा दिया, आपने किसी को डिस्टर्ब कर दिया, आपके कारण कोई परेशान हो गया, नाराज हो गया, दुखी हो गया, आप उसे कहिए आई बेग योर पार्डन, माफ कीजिएगा. नाउ फॉरगिव मी प्लीज का मतलब हुआ कि आपने गलती किया और उस गलती के लिए आप माफी मांग रहे हैं. आपको जो सजा दिया जाने वाला है उस सजा से माफी के लिए आप कहते हैं, जब आप कहते हैं आई एम सॉरी, वहां पर आप ये भी कह सकते हैं माई मिस्टेक, माई बैड, और ये ना कह के आप आई एम सॉरी कह के भी काम करते हैं. नो प्रॉब्लम. बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये एक्सप्रेशन है आई एम सॉरी. तो इस कैटेगरी में हमने कई वर्ड दिए. आई एम सॉरी के बदले आप कह सकते हैं माई मिस्टेक, माई बैड, या फिर आप कहते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सो सॉरी. दैट मीन्स यू आर टू मच रिग्रेटेड, यू आर टू मच डिसअपॉइंटेड एज व्हाट यू हैव डन. आपको कोई कुछ कहा, आप नहीं सुना, आपने कहा पार्डन, फिर से बोलिएगा, रिपीट कीजिएगा. आपने कोई गलती किया, कोई पनिशमेंट देना चाहते हैं, गलती छोटी हो, आई बेग योर पार्डन, थोड़ा सा बड़ा भूल हो जाए आपसे, फॉरगिव मी प्लीज. यहां पर हम ये भी कह सकते हैं आई अपोलोजाइज. इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि आई एम सॉरी के बदले में और क्या क्या बेहतर एक्सप्रेशन यूज हो सकता है. तो दैट इज माई नेक्स्ट वीडियो. अब हम आगे आते हैं. थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच का यूज हम कैसे करते हैं. वेल, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, यूजिंग ऑफ दीज टू थिंग्स इज वेरी कॉमन. These days it is overused. Without it you cannot be a good mannered person. So it's again a very good manner, a good etiquette. It comes under good habit to say always thank you. देखिए, जब आप कहते हैं थैंक्स और थैंक यू कहना ज्यादा पर्सनल लगता है थैंक्स से, तो मैं प्रीफर करता हूं थैंक यू कहना, ना कि थैंक्स कहना. When can you say thank you and thank you very much? दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है कि थैंक यू कैन बी यूज्ड अगेंस्ट लिटिल हेल्प और थैंक यू वेरी मच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट बिग हेल्प. डिपेंड्स कि मदद छोटा है या बड़ा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट थैंक यू. When can you say thank you? Suppose somebody helps you in some way. Against that, you say thank you. Thank you for this help. Suppose you requested somebody for something. हम लोगों से नॉर्मली दो चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं. या तो व्यक्ति को हम कुछ करने के लिए कहते हैं या फिर कुछ कहने के लिए कहते हैं. You would like to have some information and you are requesting person. Excuse me, could you tell me what is the way to the railway station? आप पूछ रहे कि भाई साहब बताइएगा कि रेलवे स्टेशन का रास्ता कैसे जाता है, कैसे जाए. अगर आपको बता दिया तो ये एक हेल्प हो गया. आप कहते हैं थैंक यू. आपने किसी को कहा कि एक गिलास पानी पिलाओगे और आपको पिला दिया, लेके आ गया, आप कहिए थैंक यू. तो इसका यूज हम अगेंस्ट लिटिल हेल्प करते हैं. इतना ही नहीं, थैंक यू जब हमें कोई बढ़िया सजेशन दे तो हम थैंक यू कहते हैं. अगर हमें कोई कॉम्प्लीमेंट्स दे, अगर हमें कोई कहता है कि डीएनटी योर प्रोनाउंसिएशन इज ओके, वेरी क्लियर, डीएनटी यू एक्सप्लेन समथिंग वेरी गुड, आई से थैंक यू. इट इज ए कॉम्प्लीमेंट. अगर मुझसे कोई कहता है डीएनटी यू लुक टेरिबल, नो प्रॉब्लम, आई से थैंक यू.
Somebody might say, DNT, your pronunciation is not good, your teaching style is not good. No problem. Thank you. देखिए, कमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, कमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डजंट मैटर. पॉजिटिव कमेंट सबको अच्छे लगते हैं, बट जब नेगेटिव कमेंट होता है तो लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं. सॉरी, यू टेल हिम दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू, थैंक्स. तो आप किसी हेल्प के अगेंस्ट में कह सकते हैं, आप इसका यूज किसी कॉम्प्लीमेंट के अगेंस्ट में कह सकते हैं, आपको कोई किसी भी तरह की बढ़िया सजेशन दे, आप उसके अगेंस्ट में इसे कर सकते हैं. आपको कोई विश करता है, आप कहते हैं कि वेल डियर टुडे इज माय बर्थडे, और आपको विश किया, वाओ मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आप कहते हैं थैंक यू. आपके लिए कोई उपहार लेके आया है, वेल डियर दिस इज फॉर यू, आप कहते हैं थैंक यू. सो थैंक यू इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सप्रेशन. प्लीज डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू as whenever you have been offered any help. One more thing I would like to add here. जब आपको कोई भी कुछ ऑफर करे, ये लीजिए, देखिए मुझे चाहिए या ना चाहिए दैट इज डिफरेंट इशू, बट हमें थैंक यू कहना नहीं भूलना. वी शुड नॉट फॉरगेट टू से थैंक यू. अगर नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम, नो थैंक्स. Or if we are accepting that, thank you for this gift. आपको कोई इनवाइट करता है, नहीं कि वेल आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू द डिनर पार्टी टुनाइट, मैं आज रात ना आपको डिनर पार्टी पे इनवाइट करना चाहता हूं. वेल आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू टी पार्टी टुमारो, कल मैं आपको टी पार्टी पे इनवाइट कर रहा हूं. हम लोग देते हैं ना, न्योता देने आता है, निमंत्रण देने आता है, तो आपको क्या कहना है उसके बदले में? सेम टू यू तो नहीं कहेंगे कि आपको भी हम इनवाइट कर रहे हैं, हम उसके बदले में कहते हैं थैंक यू. तो थैंक यू का रेंज बहुत बड़ा है. हमने क्या क्या बोला, यू कैन प्लीज रिकॉल दोज थिंग्स. हमने कहा कि छोटा सा हेल्प हुआ किसी के द्वारा, थैंक यू. हमको अगर कोई सजेशन दिया, वो सजेशन हमें अच्छा लगा, हम बदले में कहेंगे थैंक यू. हमने किसी को कुछ करने के लिए कहा, कुछ कहने के लिए कहा, अगर उसने किया कहा उसके बदले में थैंक यू. हमें कोई कॉम्प्लीमेंट्स दिया, उसके बदले में थैंक यू. हमें कोई कुछ ऑफर किया, उसके बदले में थैंक यू. हमें कोई विश किया, उसके बदले में थैंक यू. हमें कोई इनवाइट किया, उसके बदले में थैंक यू. तो हम थैंक यू का यूज एक वाइड रेंज में देख रहे हैं, और थैंक यू और सॉरी के बिना आपका जो एटिकेट है, आपका जो मैनर है, वो अधूरा है. सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग एवरी नाउ एंड देन, वेरी फ्रीक्वेंटली. प्लीज यूज इट वेरी ऑफन. इसको प्राय यूज कीजिए. नाउ सो आई वुड लाइक टू लिटिल बिट एक्सप्लेन मोर अबाउट थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच कहां यूज करेंगे? देखिए, जब हमें किसी से बहुत बड़ा सा मदद मिलता है, सपोज आप कहीं जा रहे हैं और कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, देयर इज नो व्हीकल, आपको कोई लिफ्ट दे दिया, थैंक यू वेरी मच. आप कॉलेज गए, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, आपके पैसे कम पड़ गए, आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं नहीं अभी प्रेजेंट, आपने अपने फ्रेंड से बोरो किया, आपने अपने फ्रेंड से उधार मांगा, आपका फ्रेंड दे दिया. देखिए, ये हेल्प तो है, बट मेक श्योर कि ये माइनर नहीं है, ये मेजर हेल्प है. इट इज अ बिग हेल्प. तो जब आपको कोई बड़ी सी मदद मिलता है किसी से, तो आप उसे थैंक यू वेरी मच कहते हैं. इसके बदले में और कुछ भी बोला जा सकता है, थैंक्स ए लॉट, थैंक यू सो मच, मिलियन थैंक्स. थैंक यू के बदले में थैंक यू ना कह के और क्या क्या कहा जा सकता है, इसका भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे. जिस तरह से मैंने कहा कि आई एम सॉरी ना कह के, और उसके मतलब हर एक चीज के लिए आई एम सॉरी कहना ये ठीक नहीं है, या हर एक चीज के लिए थैंक यू और थैंक यू वेरी मच कहना ठीक नहीं है. इसके और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं.
अगर हम हर जगह एक ही चीज का यूज करते हैं तो कभी कभी जो हमारा लिसनर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली व्हाट डज ही मीन बाय सेइंग दिस। तो विल मेक श्योर दैट कि जो चीज बहुत ओवर यूज्ड हो जाता है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, अनप्लीजेंट सा हो जाता है। तो हाउ टू मेक इट प्लीजेंट बाय यूजिंग सम अल्टरनेटिव्स, विल टॉक in the next video someday. Now coming to the word what a pity. What a pity, कितने अफसोस की बात है। When you are feeling regret about anything, when you are feeling not happy about anything, when you are disappointed by something, you say what a pity. Suppose आप मुझे इनवाइट कर रहे हैं कि कल मेरे यहां फंक्शन है डीएनटी, प्लीज कम टू मी, आई एम इनवाइटिंग यू टुमारो। हम कहते हैं व्हाट अ पिटी, कितने अफसोस की बात है कि आई कैन नॉट अटेंड योर पार्टी, मैं आपका पार्टी नहीं अटेंड कर सकता। अब बहुत सारा रीजन हो सकता है, यू मे नॉट बी फ्री दैट टाइम, हो सकता है आपके यहां खुद बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है कि मैं आपके यहां नहीं आ सकता क्योंकि उस वक्त मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। जब आप किसी रिग्रेट और डिसअपॉइंटेड बात को बताना चाहते हैं, दुखद बात को बताना चाहते हैं, तो आप इस फ्रेज का यूज कीजिए, व्हाट अ पिटी। इन पाकिस्तान ड्यूरिंग इलेक्शन बेनजीर भुट्टो वाज assassinated. व्हाट अ पिटी, इन स्पाइट ऑफ कोविड-19, इस कोरोना वायरस होने के बावजूद भी कितने सारे मीटिंग्स हो रहे हैं, कितने सारे कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, द पीपल आर कमिंग ऑन द रोड अननेसेसरीली। कितने अफसोस की बात है कि लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, व्हाट अ पिटी। तो ये दुखद बात है, अफसोस की बात है, और ये बात जब आप बताना चाहते हैं तो आप यूज कीजिए व्हाट अ पिटी। दुखद बात, अनहैप्पी वाली बातों को बताने के लिए आप इसका यूज करते हैं व्हाट अ पिटी। आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज 28 नंबर इज 28 इज व्हाट अ सरप्राइज। व्हाट अ सरप्राइज, कितने आश्चर्य की बात है। देखिए अभी पिटी का यूज हुआ अफसोस जताने के लिए, दुख की बात बताने के लिए, लेकिन सरप्राइज when you are amazed by something, when you are bewildered, really, when some unexpected things happens, wow, what a surprise. Suppose you have a friend and you have not met your friend from long time. आप काफी समय से अपने एक दोस्त से नहीं मिले हैं, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त रहा है। Suddenly he comes to you, he knocks at your door and you open the door. आप देखते हैं कि wow, what a surprise, after a long time you are here, after a long time we are meeting. तो इसका यूज हम लोग किसी भी आश्चर्यजनक बातों को बताने के लिए हम कर सकते हैं। My God, what a surprise, I saw an alien in the sky. I saw a ghost yesterday. कल मैंने एक भूत देखा। It is a surprise. Surprise हम समझ रहे हैं, unexpected चीज which we have never thought of earlier. अगर something happens like that, so in order to show your bewilderment, your amazement, you say what a surprise. Now the next expression is it's my pleasure. When can we use it's my pleasure? It's my pleasure when somebody tells you thank you. Thank you के बदले में आप कह सकते हैं it's my pleasure. जिस चीज में आप अपने आप में आपको खुशी मिल रहा है। Suppose as a teacher, if I ask you to do something, suppose I say, well dear, would you mind helping me a little bit? आप थोड़ी हमारी एक मदद करेंगे? आप कहते हैं why not sir, it's my pleasure. हम कहते हैं कि okay, could you do me a favor? एक फेवर करोगे? और
when you think that you are pleased to help me, to cooperate me, to support me, to do whatever I have asked you, you say it's my pleasure. Means what? You are feeling happy to do that. It's my pleasure. या फिर आप कहते हैं my pleasure, ये मेरी खुशी की बात है. कभी कभी आप किसी से कुछ चीज एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वो चीज आपको कहा जाता है करने के लिए, तो आप उस चीज का इंतजार करते रहते हैं और यू विलिंगली एक्सेप्ट टू डू दैट, और आप कहते हैं वाओ, इट्स माई प्लेजर टू डू दैट, इट्स माई प्लेजर टू सर्व यू, इट माई प्लेजर टू टॉक टू यू. कमिंग टू what a capital idea, number 30. What a capital idea. When you think that there is some awesome idea, some good thought, some important idea, you can say wow, what a capital idea. Suppose as a student आप कहते हैं DND sir, you know, I'm learning and as well as I'm teaching students to meet my expenditure. हम कहते हैं wow, what a capital idea. आप कहते हैं sir, you know, global warming is going on. Sir, there is much pollution everywhere. So these days I am running a campaign as how to reduce the pollution. आप कहते हैं wow, what a capital idea. आप कहते हैं सर, मैं ना लोगों की मदद करना चाहता हूं इस पेंडेमिक सिचुएशन में, इस कोविड-19 सिचुएशन में. हम कहते हैं wow, what a capital idea. तो when you think that someone's thought is important, someone thought is very fruitful, helpful, आप कहते हैं what a capital idea. So well my dear, that's all in this video. आप देख रहे हैं कि अभी हम इस बोर्ड पे यहां 30 तक पहुंचते हैं. I have just reached here, what a capital idea. मेरे पास यहां 55 एटिकेट है, 55 एक्सप्रेशंस हैं जो हमारे हैबिट्स को दर्शाता है, और अभी हमने यहां 30 तक ही पहुंचा है. हम चाहते हैं कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे यहां पर शॉर्ट करना पड़ रहा है. यहां इस 30 के पास मुझे रुकना पड़ रहा है. एंड यू मेक श्योर दैट यू मस्ट वॉच इट्स सेकेंड वीडियो, ताकि आप इस पूरे यहां तक जो 55 तक का जो एक्सप्रेशन है उसको कवर कर पाए. I hope that you will definitely and surely and certainly you will watch both the videos. So I hope you to do that. I request you to do that. It will help you a lot. How much it will help you, you will learn it later on. आप इसे बाद में समझेंगे. और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को खत्म करूं, I would like you to have the screenshot. आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, so that you can next time keep a record as what will come next. So I hope you have done that. Thank you very much for patient listening and watching my video. We are meeting in the next video. Till then, have a nice time. Bye.